شکریہ جی محترم مہمان. میرا نام سلطان ہے, میں ٹور گائیڈ ہوں. ہمارے پاس 2 قلعے ہیں, التت اور بلتت. جس قلعے میں آپ کھڑے ہیں اس قلعے کا نام بلتت فورٹ ہے. یہ 800 سال پرانا قلعہ ہے. 1945 میں یہاں کا جو میر تھا, ان کا نام میر محمد جمال خان تھا. انہوں نے اس قلعے کو 1945 میں چھوڑا تھا سر. 1945 سے لے کے 1990 تک یہ جو قلعہ ہے اس کی حالت کافی خراب ہو گئی تھی, دیواروں کی خستی حالت ہو گئی تھی. پھر 1990 سے 96 تک اس کو رینوویٹ کیا گیا ہے. سر جی آپ تھوڑا اس طرف آ جائیں گے تو لوگ آپ کے بیک سائڈ سے سر ادھر آ جائیں, آپ ادھر آ جائیں سر. سو 1990 سے 96 تک اس قلعے کو رینوویٹ کیا گیا ہے. اس قلعے کا رینوویشن کا مقصد جو ہمارا جو اپ کمنگ جنریشن ہے ان کو ہم نے یہ تعلیم دینا ہے یا ان کو سکھانا ہے کہ لوگ یہاں پہ اس زمانے میں کس طرح بیٹھا کرتے تھے. سو جو ابھی جو 1990 سے 45 سے پہلے اس فورٹ کو حمزہ کا میر کا پیلس تھا. 29 ستمبر 1996 کو اس زمانے کا جو صدر تھا فاروق احمد خان لغاری تھے. ہز ہائنس پرنس کریم آغا خان اور 12 ممالک کے ایمبیسڈرز نے اس فورٹ کو ایز اے میوزیم کے طور پہ اوپر لیا گیا. بیفور 1945 یہ پیلس تھا, ابھی میوزیم بن گیا ہے سر. یہ میوزیم ہے. سو 29 ستمبر صدر فاروق احمد خان لغاری نے اس کو کنورٹ کیا میوزیم میں. سو بیفور 1945 ہم ٹیکس پیئر تھے. میر آف حمزہ کو ٹیکس پے کرتے تھے. ٹیکس جو ہے اناج کی شکل میں پے کرتے تھے. یہ سر جی اناج کے ذخائر ہیں. اس قلعے میں اسی طرح کے ساتھ ہیں. یہ اس میں اناج رکھی جاتی تھی سر جی. اس قلعے میں اسی طرح کے ساتھ ہے. سامنے پاؤٹ سے آپ اس کو ایز اے میجرمنٹ کہا جاتا ہے, اسکیلز کہا جاتا ہے. لوگوں سے حساب سے لیا بھی جاتا تھا اور ان کو حساب سے دیا بھی جاتا تھا سر جی. ساتھ میں ایک پاؤٹ ہے, آپ اس کو ایز اے پریشر کوکر کہہ سکتے ہیں. یہ نرم پتھر سے بنی ہوئی ہے. یہ بوائل ہونے میں 1.25 گھنٹہ لگتا ہے. ایک دفعہ بوائل ہونا سٹارٹ ہو گئے تو اس کی بوائلنس وداؤٹ فائر یہ 2 سے 2.5 گھنٹے میں ختم نہیں ہوتی. سر جی ہارس ریڈل ہے, زین کہا جاتا ہے. اسپیشلی پولو میچ یا سفر کے دوران اس کو استعمال کی جاتی تھی. پلیز دروازے چھوٹے ہیں, اپنا سر کا خاص خیال رکھیں. دروازے چھوٹے ہونے کا مقصد اس زمانے میں لوگوں کا قدیں چھوٹی نہیں تھی بلکہ یہاں کے ٹیمپریچر کی وجہ سے ان دروازوں کو چھوٹا رکھا گیا ہے. اسپیشلی دسمبر جنوری میں ابھی بھی جو ٹیمپریچر ہے وہ کبھی کبھار -90 20 تک چلی جاتی ہے. سو اس وجہ سے ان چھتوں اور دروازوں کو چھوٹا رکھا گیا. سو پلیز ہم ٹور سٹارٹ کریں گے, کا خاص خیال رکھیں. گارڈ روم یہاں پہ ان کے لیے سپرویژن کے طور پہ ایز اے گارڈ روم کے طور پہ ان کو استعمال کیا جاتا ہے. سو بھائی جان آپ پہلے چلیں پلیز. اچھا تو یہ جو جگہ ہے یہ تو چھوٹی سی ہے, تو جو پرزنرز ہوتے تھے وہ کم ہوتے تھے؟ میڈم دیکھیں یہاں پر آبادی کم تھی تو پرزنر کتنے 1-2 سے زیادہ ہونا ہی نہیں تھا. تو کرائم ریٹ بھی زیادہ نہیں تھا؟ کرائم ریٹ ریشو الحمدللہ حمزہ میں آج تک 0 ہے. ماشاء اللہ. چلیں پلیز. نیچے سر, نیچے جو ونڈوز ہے بالکل یہاں سے لوگوں کی نقل و حرکت دیکھنے کے لیے باہر گارڈ تعینات کیے جاتے تھے. یہ لوکل ٹریڈیشنل ڈریسز ہیں, میل فیمیل کی. درمیان والی فیمیل ڈریس ہے, سائڈوں والا میل ڈریسز ہے. دیز آر دا لوکل ٹریڈیشنل ڈریسز. آپ کی بیک سائڈ پہ ورلڈ میپ ہے, یہ 1550 کے ورلڈ میپ ہے. برٹش میوزیم نے بلتت فورٹ کو گفٹ کیا تھا. سو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے نیکسٹ روم آنے سے پہلے اپنا سر کا خاص خیال رکھیں. جی. اس زمانے میں اس ہال کو ایز اے سیکریسی پلاننگ ہال کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا. یہاں پہ میرز اور منسٹر بیٹھ کے اس زمانے میں سیکرٹ میٹنگیں کی جاتی تھی. یہ جو قالین ہے گورنمنٹ آف چائنا نے میر آف حمزہ کو گفٹ کیا ہے. یہ تقریباً 130 سال پرانی کارپیٹ ہے. آپ کے بیک سائڈ پہ یہ جو ڈور ہے یہ ایز اے ایمرجنسی ایگزٹ ہے, یہاں سے باہر نکلنے کا بھی راستہ ہے. آپ کے بیک سائڈ پہ جگس اینڈ گلاس ہے, 18 سینچری سے لے کے 19 سینچری تک کشمیر سے لائی گئی ہیں سر جی. سو دس از اے ٹیپیکل حمزہ ہاؤس. آپ نے یہ کہنا کہ ہم نے حمزہ کا سارا گھر دیکھ لیا. اس زمانے میں اس ہاؤس کو ایز اے سیکریسی پلاننگ ہال کے طور پہ استعمال کی جاتی تھی سر. اچھا یہ جو پلرز وغیرہ یہ دیار کی لکڑی کی؟ نہیں یہاں دیار نہیں ہے سر, یہ عام
ये नेचुरल है अभी तक तब से तब से Preserve- या बाद में preserve किया है। renovate किया? देखिए हर एतवार में कुछ चीज़ों को चेंजिंग की गई है। जी। एक ही राजा ने इस किले को कंप्लीट नहीं किया। हर दौर में आके इसका थोड़ा हल्की सी चेंजिंग हो गई। अच्छा ये बताइएगा ज़रा, ये जो चाइना का आपने बताया, क्योंकि सिल्क रूट जो है ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन वो यही हुंजा से ही कनेक्ट होती है, यानी गवर्नमेंट ऑफ चाइना के इतने पुराने कनेक्शन थे हुंजा के साथ। देखिए जी हमारा जो करीब जो पड़ता था वो स्पेशली हमारा चाइना ही था। क्योंकि ज़बरदस्त। हमारा जो रूट था वो चाइना के साथ था। जो हमारा जो कराकुरम हाईवे जहाँ से आप आए हैं जी जी। वो तो बाद में निकला, ये तो 90s में निकला है। और ये सिल्क रूट पुराना था। से लेके 86-90 तक ये कराकुरम हाईवे निकला। जो हमारा आप बाटा के सिस्टम कह लें, इतना ट्रेड तो हो ही नहीं सकता था क्योंकि अच्छा। इतनी आबादी नहीं थी या इतना बिजनेस रूट नहीं था। ज़रूरत के मुताबिक चीज़ों को अंदर ले जाने या बाहर लाने के लिए इस तरह का ट्रेड बाटा सिस्टम था। तो जो भी बाटा ट्रेड हुआ अच्छा, तो करता चाइना था, के साथ बाटर उस हुआ ज़माने करता में था। जी चाइना के साथ किया करते ज़बरदस्त। थे। अच्छा, तो चाइना को टैक्स कैसे देते थे? देखिए जो इसलिए देते थे कि वो जिस तरह आप अभी आपका जो दोस्ती है हुंजा और पाकिस्तान का पाक चीन जो दोस्ती है जी जी जो सी पैक आपका बना है जी, किसी जी। मेहरबानियों की वजह से बिल्कुल। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और यहाँ के मीर ऑफ हुंजा की वजह जी, से सो जी। दैट्स व्हाई द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इज हुंजा। और कितना प्यारा लग रहा है ये। आगे आ जाएंगे इधर आ जाएंगे सामने से आ जाएंगे तो आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर नजर आ जाएगी। जी, ये क्या है? ये तनूर है? चीज़ें बता देंगे मैडम आपको। जी। वेंटिलेशन एंड धुएं के लिए इस खिड़की को इस्तेमाल किया जाता था। हमारे ज़बान में सगम कहते हैं। आपकी बैक साइड पे एक स्टोर है, उस ज़माने में फ्रिज के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। इस दीवार की बैक साइड पे ग्लेशियर था। बटर, पानी, दूध जो भी चीज़ ठंडा रखने के लिए एज ए रेफ्रिजरेटर के तौर पे ये काम किया करता था। सो इस किचन को एज अ रॉयल किचन कहा जाता था उस ज़माने में। यहाँ पे मीर ऑफ हुंजा के जितने भी सर्वेंट्स हैं वो इस किचन में बैठ के उनके लिए खाना पकाए जाते थे। प्लीज़ सर का ख्याल रखना, छत पे चलेंगे। यहाँ पे मीर ऑफ हुंजा बैठते थे, ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पे मिनिस्टर बैठते थे। का एज ए रिसेप्शन हॉल है। स्पेशली उस ज़माने में कोई मेहमान आता था तो यहाँ पे उनके लिए वेलकम की जाती थी। राजे यहाँ से स्टार्ट से, इनसे पहले भी थे, पिक्चर ना होने की वजह से इनका स्केच है। मीर गज़न खान 1 है, इनका स्केच है। मीर सफदर खान है, मीर मोहम्मद नजीम खान है, गज़न खान 2 है। 1945 में मीर मोहम्मद जमाल खान ने इस किले को छोड़ा था। इनको गिलगित बल्तिस्तान का 1974 में गिलगित बल्तिस्तान का ऑनरेबली मेजर जनरल भी बनाया गया था। करंट जो मीर ऑफ हुंजा है इनका नाम मीर गज़नफ़र खान है। ये गिलगित बल्तिस्तान के एक्स गवर्नर भी रह चुके हैं। ये मीर ऑफ हुंजा है। करंट जो मीर ऑफ हुंजा है ये मीर गज़नफ़र खान है। इनकी वाइफ है रानी ऑफ हुंजा है। उनका बड़ा बेटा है प्रिंस शाह सलीम है। 2 बेटे और है, प्रिंस शेरियार और प्रिंस सलमान। ये इनका बड़ा बेटा है। मीर मोहम्मद जमाल खान की ड्रेस है, इनकी फैमिली की ड्रेस है। ये किसी ख़ास ओकेजन पे इनको पहनाया जाता था। हुंजा स्टेट का फ्लैग है, चांद सितारा इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है। जो एरो है एज ए ब्रेवनेस के तौर पे, बहादुरी के तौर पे इसको इस्तेमाल की जाती थी। मार्का पोलो शीप है। बाहर जो था मार्कोर था, ये मार्का पोलो शीप है। सामने जो पिक्चर लगे हैं ये इस्माइली कम्युनिटी के इमाम से आगा का लक़ब ईरान ने दिया था। ये 46 इमाम है। ये शाह हसन अली शाह है। देन 47 इमाम है शाह अली शाह। 48 इमाम है शाह सुल्तान मोहम्मद शाह। इनके बारे में आपने पढ़ा होगा। मुस्लिम लीग बनाने में भी क़ायद आज़म के साथ मिलकर इन्होंने काम किया था। पाकिस्तान बनाने में भी इनका हाथ है। करंट जो इस्माइली कम्युनिटी का इमाम है हिज हाइनेस प्रिंस करीम आगा खान है। ये 49वां इमाम है इस्माइली कम्युनिटी के। इनका नाम शाह करीम अल हुसैनी है। गिलगित बल्तिस्तान स्पेशली पाकिस्तान में इनके 2 चीज़ों पर फोकस है, आगा खान एजुकेशन सर्विस और आगा खान हेल्थ सर्विसेज पे।
हाँ मैडम, रॉयल किचन था, शाही किचन। उसमें बर्तन से जिसमें ग्राइंडर्स था, गंदम की पिसाई के लिए इनको इस्तेमाल की जाती थी। कतुक के जग्स थे, स्पेशली जो हमारी ख़वातीन उस ज़माने में हुआ करती थी। ग्लेशियर या चैनल से पानी लाके इन बर्तनों में स्टोर किया जाता था। सामने वुडन संदूक था जिसमें आटा गंदम रखी जाती थी। वुडन प्लेट्स थे, लोग इकट्ठे खाने के लिए इन बर्तनों को इस्तेमाल किया जाता था। एक छोटी सी स्टोर थी, वहाँ पे आपने देखा होगा उस ज़माने में एज ए रेफ्रिजरेटर के तौर पे उसको इस्तेमाल किया जाता था। उस दीवार की बैक साइड पे ग्लेशियर था जिसका नाम उत्तर ग्लेशियर है। उत्तर ग्लेशियर टच हुआ करता था। सो पानी, दूध, बटर, जो भी चीज़ ठंडा रखने के लिए एज ए रेफ्रिजरेटर के तौर पे भी वो काम किया जाता था। सो दैट्स व्हाई मैडम वो एक रॉयल किचन था। तो वालदा क्यों चाइना चली गई थी? वो चाइना की थी। अच्छा। ये जो है मैडम हुंजा या गिलगित बल्तिस्तान में अभी भी 60% या 50% के लोग नीचे फर्श पे बैठते हैं या फर्श पे सोते हैं। सो इस रूम को एज अ रॉयल समर बेडरूम के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। ये जो कालीन है स्पेशली मीर ऑफ हुंजा के लिए बाहर तख्त पे बिछाई जाती थी। हुंजा और चाइना के दरमियान एग्रीमेंट से, दीज आर द ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन हुंजा एंड चाइना। ये तिजारती एग्रीमेंट से, ये 1930 से 31 तक की ट्रेड एग्रीमेंट से जो चाइनीज और पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई है। ऊपर जो डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन को कश्मीरी डिज़ाइन का सीरीज कहा जाता है। अभी ये जो आगे जो नेक्स्ट रूम आपको दिखा देंगे, ये 1915 से लेके 1930 तक इसको एडिशन किया गया है। ये डिज़ाइन कश्मीरी डिज़ाइन का सीलिंग है। ये 1915 से लेके 1930 तक एडिशन किया गया है। ये जो वो लेटर है जो मीर जबल खान ने क़ायद आज़म को लिखा था पाकिस्तान के साथ इल्हाक करने का, ये वो उसका लेटर का फोटो कॉपी है। यहाँ से मीर और उसके फैमिली नीचे फोटो देखा करते थे। ऊपर जो पिक्चर लगे हैं इनको गशपूर कहा जाता है, यानी कजन जोक मीर से गिलगित बल्तिस्तान स्पेशली पाकिस्तान के लिए इनके खिदमात हैं। इस बरंदे को भी 1915 से लेकर 1930 तक इसको एडिशन किया गया है। इसको कश्मीरी डिज़ाइन का बरंदा बल्कोनी कहा जाता है। 1950 की तस्वीर बल्दिक किले से ली गई है। ये मीर मोहम्मद जमल खान है, करंट जो मीर ऑफ हुंजा है, मीर गज़नफर अली खान की पिक्चर है। दरमियान वाली अल्तित फोर्ट से ली गई पिक्चर है, मीर ऑफ हुंजा है, इनकी वाइफ रानी ऑफ हुंजा है। नगर रियासत की राजा की बेटी थी। 13 साल पहले 98 की एज में इनकी डेथ हो गई है। साथ में इनका स्केच है। ये ब्रिटिश ने लाया हुआ टेलीफोन है। नीचे जो टेलीफोन है ये ब्रिटिश ने लाया हुआ टेलीफोन है। सो इस रूम को एज अ रॉयल बरामदा कहा जाता है। कश्मीरी डिज़ाइन का भी बरामदा कहा जाता है। प्लीज़ एंजॉय योर पिक्चर। नेक्स्ट रूम में चलेंगे जी। बेडरूम के तौर पे इस रूम को इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पे आग लगाई जाती थी ताकि पूरा रूम टेम्परेचर गर्म रखने के लिए। हर रूम में छोटे छोटे स्टोरेजेस हैं। हर एक रूम में किचन में एज अ कपबोर्ड की तरह काम किया करते हैं। एज अ किचन में कपबोर्ड की तरह काम किया करते हैं। ज़रूरत के मुताबिक चीज़ों को रखी जाती थी या बाहर निकालने में भी ये काम आते थे। सो वुडन प्लेट्स हैं। उस ज़माने में लोग इकट्ठे खाने के लिए इन बर्तनों को इस्तेमाल किया जाता था। वुडन संदूक है जिसमें आटा गंदम रखी जाती थी। बेबी कोट है, गोरा कहते हैं। 1 साल तक बच्चों के लिए अभी भी घरों में हम इसको इस्तेमाल किया करते हैं। स्पेशली इस पर कुरानी आयात भी लिखी जाती हैं क्योंकि किसी की नजरी से बचने के लिए। 2 कुरान पाक हैं, 1700 सेंचुरी, 1800 सेंचुरी। 300 साल पुरानी कुरान पाक है जो हाथ से लिखी गई है। 200 साल, थोड़ा आगे जाएंगे आपके आगे जाएंगे। 200 साल पुरानी कुरान पाक है जो हाथ से लिखी गई है। प्लीज़ यहाँ पे आगे ना जाएगा क्योंकि बेबी कोट जी जी कुरानी आयात लिखी जी गई जी है। आपसे रिक्वेस्ट है। अपना सर का खास ख्याल रखते हुए नेक्स्ट को बनाने से पहले। थैंक यू सर। थैंक यू। अंदरूनी दरबार के तौर पे भी इस हॉल को इस्तेमाल की जाती थी। बारिश गर्मी में भी इस हॉल को इस्तेमाल किया जाता था। नीचे सर। पहली करेंसी है चाइना ने इंट्रोड्यूस किया है सर। ये 1 रुपए का नोट है। ये 1920 से 23 तक की नोट्स है।
साथ में डोल्स हैं, ये यहाँ के म्यूजिक के तौर पे इस्तेमाल किए अच्छा, ये करेंसी जो आप ये बता रहे हैं इंट्रोड्यूस की थी, तो ये उनकी तो वो रेनमिन भी करेंसी वही करेंसी ये सिर्फ 1920 से 23 तक की नोट्स है, ठीक है मैडम। ठीक ये हैंड मेडेड है, ये चाइनीज करेंसी है। ठीक तो साथ में डोल्स हैं, ये यहाँ के म्यूजिक के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। आपके पाँव के नीचे जो कारपेट है, लोकल जबान में हम शर्मा कहते हैं। यॉर्क शीप इसकी वूल से बनी जाती थी, ये स्पेशली हमें ठंड से बचा लेती थी। अच्छा सामने जो कारपेट है, इस कारपेट को खुतन कारपेट कहा जाता है। सुमाल विलेज इन चाइना, छोटी सी शहर है, 200 साल पुरानी कारपेट है। गन्स है, लोकल जबान में छरा कहते हैं। ये रशियन गन्स है। अपने डिफेंस हंटिंग के तौर पे भी इनको इस्तेमाल किया जाता था। सो आप मेहमानों से एक रिक्वेस्ट है आपका आने का, सुनने का। बहुत शुक्रिया जी। दिस वाज आवर लास्ट रूम, यहाँ से एग्जिट लेंगे। आई थिंक आपने एंजॉय किया होगा। जी, आपने बहुत। enjoy किया, बहुत शुक्रिया जी। सिविलाइजेशन और इतना ओल्ड कनेक्शन चाइना के साथ। सर ये स्पीकर क्यों लगाए?